माननीय प्रधानमंत्री जी की अनाउंसमेंट हुई, उसके साथ साथ हमें खुशी है आपको सूचित करते हुए कि कल और आज के बीच में कोविशील्ड को 25 करोड़ और डोजेस की परचेज का ऑर्डर दे दिया। कोविशील्ड वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को 25 करोड़ डोजेस का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। इसी प्रकार कोवैक्सीन की खरीद के लिए भारत बायोटेक को 19 करोड़ डोजेस का ऑर्डर दे दिया गया है। Spoke to the states in a systematic way and to see what is the best way forward. We also looked at the practices across the globe at the same time. And then, as you know, the Honorable Prime Minister addressed the nation yesterday and provided us details of the new guidelines in relation to the vaccination program. And we will talk about them, and these have been issued today, this morning, and you may have seen the document. The point remains that मई के महीने की व्यवस्था को पूरी तरह से नज़र पे रखा गया, उसके फ्लो में को देखा गया, उसकी डिफ़िकल्टीज़ को समझा गया, उनको सॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन लगा कि अब हमें बैक टू सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट होगा और उसके भीतर ही स्टेट्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो इम्प्लीमेंटेशन में होगी उसको चिन्हित किया जाएगा। So under the new guidelines, as you are aware, the government of India will procure 75% of the vaccines being manufactured in India. जो भारत की धरती पर वैक्सीन बन रहे हैं उनका 75% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोक्योर, और ये सारा स्टेट्स को फ्री दिया जाएगा। इसकी जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी और इनको आगे फ्री एलिजिबल पॉपुलेशन तक मिलेगा थ्रू द गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर्स इन वेरियस स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन and villages. So free access to vaccine to the people of India, supplied free to the state government, procured nationally by the union government to the tune of total 75% of the total production. States को कैसे allocation होगी? Naturally on the basis of population, also on the basis of the pandemic situation in that population, उसको भी नज़र में रखा जाएगा ज़रूरत को, और साथ साथ कितनी तेज़ गति से, कितने सुचारू रूप से वैक्सीनेशन प्रोग्राम करा जा रहा है उसको भी नज़र में रखा जाएगा कि इस्तेमाल भी हो सके जो वैक्सीन अलॉट हो रहे हैं, और जिस तरह से वैक्सीन आगे तक जाना चाहिए वो ठीक तरह से पहुँचे, और ये भी देखा जाए कि वैक्सीन की वेस्टेज जो है वो कम हो और कम वैक्सीन की वेस्टेज को इंसेंटिवाइज किया जाएगा इन अ स्मॉल वे. What is the prioritization in terms of groups? First and foremost, we remain committed to the uptake of the vaccine by healthcare workers. There is still unfinished agenda, and we believe it is of highest priority. As the Honorable Prime Minister yesterday reminded us, imagine if an overwhelming proportion of healthcare workers, doctors, nurses, paramedics, ambulance drivers, other team members of the healthcare teams, and also frontline workers, had not received the vaccine, the consequences would have been disastrous. Confidence कितना होता उस दशा में? वैक्सीन मिलने के बाद कॉन्फिडेंस आता है कि आप एक कोरोना के वार्ड में जा सकते हो जहाँ पे 25 मरीज छोटे से स्पेस में लुक आफ्टर किए जा रहे हैं. सो ये बहुत हैंडी हुआ है. देयरफॉर वी बिलीव healthcare workers and frontline workers and their second dose is a priority. Clearly, citizens above the age of 45 remain a priority, and we have highlighted this from this podium several times. We have said that overwhelming mortality occurs in this group. If we address the immunization of this group, we are able to knock off the mortality in a very, very big way, over 80%. So this remains a priority, because they are most vulnerable. They must be protected. This is our first goal
of mitigating the effects of the pandemic. Then जिन व्यक्तियों की दूसरी डोज ड्यू हो गई है, that clearly is a priority, तो उसको नज़र में रखा जाएगा। फिर ये समझ आती है कि अब क्योंकि ये वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर सबके लिए खुल गया है, उस ग्रुप में भी हमने तरक्की करनी है, उसको भी बढ़ाना है। एंड एज यू हैव सीन फ्रॉम आवर प्रीवियस प्रेजेंटेशंस in different states and districts, the uptake of other categories varies, and uptake of those categories needs to be pushed. And once you are doing that, please also then include citizens 18 years to 45 years. Next one, please. कोई भी citizen, कोई भी नागरिक फ्री वैक्सीन का अधिकारी है। गवर्नमेंट फैसिलिटी से फ्री वैक्सीन का अधिकारी है, कोई क्राइटेरिया और नहीं है। और जिनको पे करने की एबिलिटी है, अपनी चॉइस से वो प्राइवेट हॉस्पिटल की आउटलेट से ये वैक्सीन ले सकते हैं। और एक और नई चीज़ लाई गई है, वो लोक कल्याण की परिप्रेक्ष्य में है कि अगर मैं किसी व्यक्ति को मदद करके वैक्सीन उपलब्धता देना चाहता हूं प्राइवेट सेक्टर में, तो एक ई वाउचर अवेलेबल हो सकता है, नॉन ट्रांसफरेबल। इस व्यक्ति के लिए मैं खरीद रहा हूं ये वाउचर, उस वाउचर को लेके वो व्यक्ति प्राइवेट बुकिंग करके प्राइवेट में वॉक इन करके अपना वैक्सीन ले सकता है। तो इससे एक भावना बढ़ेगी कि हम दूसरों की मदद करने के लिए एक रास्ता, सिस्टमेटिक रास्ता जो है वो सामने खुलेगा। तो ये भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट्स कैन बी प्री बुक्ड और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन, और समूहों की रजिस्ट्रेशन जो अब और भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी जब हमने पेरीफ्री पे जाना है, पेरी अर्बन एरियाज में जाना है, कि बहुत लार्ज नंबर में आगे आएँ, ऑन साइट आएँ, उनकी मदद करके उनको रजिस्टर करें और उनको वैक्सीन लगें। ये प्रावधान पहले से भी था, उसको हम सिर्फ एम्फेसाइज कर रहे हैं इस तरह से। माननीय प्रधानमंत्री जी की अनाउंसमेंट हुई, उसके साथ साथ हमें खुशी है आपको सूचित करते हुए कि कल और आज के बीच में कोविशील्ड को 25 करोड़ और डोजेस की परचेज का ऑर्डर दे दिया। कोविशील्ड वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को 25 करोड़ डोजेस का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। इसी प्रकार कोवैक्सीन की खरीद के लिए भारत बायोटेक को 19 करोड़ डोजेस का ऑर्डर दे दिया गया है। सो 25 एंड 19, 46 करोड़ डोजेस का बंदोबस्त कर दिया गया है। एडवांस ऑर्डर दे दिया गया है फॉर द पीरियड ऑफ अगस्त, फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स के लिए। इसके साथ साथ 30% एडवांस अमाउंट भी रिलीज किया जाएगा। और इसके साथ साथ याद दिलाना चाहूँगा कि फॉर बायोलॉजिकल ई जो कंपनी है, उसका जो नया वैक्सीन बन रहा है डीबीटी के मदद के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पार्टिसिपेशन के साथ, बिल्कुल इनोवेटिव नया वैक्सीन है, वो भी उम्मीद है उपलब्ध होगा सितंबर में। उसके लिए उनको 30 करोड़ डोजेस के लिए लगभग 1500 करोड़ का एडवांस उनको दिया गया है। 30 + 46, 76 करोड़ डोजेस है, am I right? 76, 30, 44, सॉरी 44, ऊपर जो 46 मैंने कहा वो 44 है, स्टैंड करेक्टेड, and 30, so 74 crore doses have been secured for the national program to be used from August onwards. और जुलाई तक के लिए, जैसे आपको पहले हमने इसी मंच से बताया है, 53.6 करोड़ डोजेस का बंदोबस्त पहले हो चुका है लगभग।